جی السلام علیکم ناظرین، ملاقات کا پچھلا سیکشن سارا آپ نے دیکھا. اندر اپنے سب دوستوں کو سن لیا جہاں پہ تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم وہاں سے نکلے، اسٹوڈیو میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس تقریب کے ہیرو دلہا جنہوں نے اس پروگرام کو لکھا، دنیا کے منصف و طاہر صدیقی صاحب میرے ساتھ ہیں. جی طاہر صاحب بہت شکریہ. جی آپ کا شکریہ جناب کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا اور ناظرین سے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا اپنے حق نیوز کے تھرو. اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے جو بھائی کیمرہ پہ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے چینل کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا ٹائم ہمیں دیا. اور آپ نے شاید ہمارا ڈرامہ بھی دیکھا دنیا کے منصفوں. جی کیسا لگا آپ کو؟ ڈرامہ بہت اچھا تھا، سب چیزیں ٹھیک تھی، سب آرٹسٹوں سے بات ہوئی. تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم ہوٹل میں بیٹھ کے بات کریں، ہم اسٹوڈیو میں آ جاتے ہیں، اس لیے میں آپ کو لے کے یہاں آ گیا ہوں. ایسا بہت خوبصورت ڈرامہ، آئیڈیا کیسے آیا؟ یہ آئیڈیا ایسے آیا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ریڈیو پہ بھی پروگرام کرتا ہوں، بات سے بات میرا پروگرام چلتا ہے. بالکل. تو یہ جن دنوں کشمیر کا بہت زیادہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، انڈیا نے بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا ہمارے کشمیری بھائیوں پہ، تو ہم سے رہا نہ گیا. اور پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے کشمیر کے لیے ریڈیو پاکستان کو الاؤ کیا کہ 14 گھنٹے کی آپ نے نشریات کرنی ہے، صحیح، صرف کشمیر کے اوپر. تو مجھے بلوایا گیا، میرے ایس ڈی صاحب نے بلوایا کہ ہم بات سے بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ڈی جی صاحبہ تھیں وہ ختم کرنا چاہ رہی ہیں. تو میرے ایس ڈی صاحب نے کہا کہ نہیں، ایک ہی تو پروگرام ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے بات. بہت اچھا، بہت اور طویل پروگرام ہے. ہاں جی ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے جی چل رہا ہے کنٹینیوسلی. آج میں اس کا 188واں پروگرام 188 قسطیں اس کی چل چکی ہیں. ہاں جی چل چکی ہیں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو کشمیر پہ کریں تو کیسا ہے، کر سکیں گے؟ میں نے کہا جی رائٹر تو ایسے ہوتا ہے کہ گاڑی کے سٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو ہم نے سٹیئرنگ ہی ٹرن کرنا، ہم کشمیر کی طرف کر دیتے ہیں. صحیح. تو کشمیر پہ میں نے پلے کیا مقدمہ کشمیر کے نام سے. بالکل، ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے مقدمہ کشمیر جو ہے وہ ہاں جی چلتا رہا ہے. جی چلتا رہا. وہ کوئی اچھا ہو گیا، اچھا لکھا گیا، اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہو گئی. تو پھر ہمیں حکم ہوا کہ نہیں آپ اس کو کنٹینیو کریں. تو اس کے میں نے 20 ایپیسوڈز کیے. صحیح. مقدمہ کشمیر کے نام سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. تو ایسے ہی پھر پی این سی اے نے حکم دیا کہ فیبرری کا مہینہ جو تھا نا وہ پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کے نام کیا ہوا تھا. بالکل. تو وہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس والے ان کے کرتا دھرتا جو ہمارے ڈی جی صاحبہ نہیں آئی ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم مہینے کا اینڈ جو ہے کشمیر کے کسی خوبصورت ڈرامے سے کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح. تو آپ کے پاس اگر آئیڈیا ہو. تو میں نے پھر ان کو آئیڈیا فلوٹ کیا دنیا کے منصفوں کے نام سے. تو انہیں بڑا اچھا لگا آئیڈیا. تو اللہ نے ہمت دی، آپ جیسے دوست مل گئے، ہمارے جو رائل پنڈی اسلام آباد کے بلکہ پاکستان کے جتنے بھی سینئر آرٹسٹ اس میں موجود تھے. بالکل، جس نے بھی دیکھا اس کی تعریف کی. بلکہ ہم نے ان سب کو تقریباً جو ابھی تقریب میں مجھے مل سکے ان کو میں نے ریکارڈ کر کے ان کے الگ الگ پروگرام بنائے. ایسے لکھنے کا سلسلہ سے پہلے لکھنے کے سلسلے سے پہلے آپ خود اداکار تھے. مقصد تھے کہ مطلب یہ کہ اس وقت اداکاری زیادہ تھی، تھوڑا سا پسے پش چلے گی اداکاری، رائٹنگ سامنے آ گئی زیادہ. کوئی خاص وجہ ہوئی؟ خاص وجہ ایسے ہوئی کہ میں ریڈیو پاکستان سے ایک پروگرام کرتا تھا مسٹر اینڈ مسز، پرائم ٹائم کا پروگرام تھا. تو اس وقت کے ایس ڈی صاحب جو تھے ریڈیو پاکستان، بڑا بہترین آدمی تھا، قمر صاحب. ہاں صحیح. انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا اسکرپٹ بھی آپ لکھیں گے اور کریں گے بھی آپ. اچھا. اس کے مسٹر بھی آپ ہیں، تو اپنی کسی مسز کو تلاش کر لیں جو ساتھ بیٹھ کے جو ساتھ بیٹھے کو آرٹسٹ جو بھی ہوں. تو ایک تجربہ تھا، وہ میں نے لکھا اسکرپٹ، اور مسز میں نے تلاش کی رائل پنڈی اسلام آباد کی بہت خوبصورت بڑی زبردست آرٹسٹ نغمانہ جماعت، بڑی اچھی کامیڈی. ہاں بالکل. انہوں نے میرا ساتھ دیا. تو وہ پروگرام کوئی پرائم ٹائم پہ 2 سال چلا، وہ میں لائیو کیا کرتا تھا. اچھا. تو پھر اسی طرح انہوں نے کہا جی آپ کے اندر تو ماشاءاللہ ایبیلٹی ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. لکھنا شروع کر دیا.
थिएटर में काफी ड्रामे लिखे मैंने। थिएटर की मेरी रिप्रेजेंटेशन काफी पुरानी थी। मैंने एक्चुअली स्टार्ट ही थिएटर से लिया। मैं भी यही सवाल करने में आ रहा था, थिएटर ज्यादा आसान है लिखने में और परफॉर्म करने में, रेडियो या टीवी? नहीं, ये सारे मीडियम जो है ना अपनी अपनी जगह एक मुश्किल है, बड़ा इनका तकड़ा होना पड़ता है आपको ज़हनी तौर पे भी, और सारे मीडियम्स के लिए सही है। रेडियो जो है इट्स द मदर ऑफ ऑल मीडियम्स। यस। थिएटर जो है ये सबसे मुश्किल काम है। फौरी रिस्पॉन्स है, फौरी रिस्पॉन्स है, और आपने जो कर दिया वही है। फूल भी है और अंडे भी है। फूल भी है और अंडे भी है। आपने जो प्रेजेंट कर दिया वो वापस नहीं आ सकता। हाँ, टेलीविजन पे थोड़ा सा ये है, मार्जिन है उसमें, आप अच्छा नहीं कर सके तो चलो रिटेक्स कर लेते हैं जी। फिल्म जरा थोड़ा सा वाइट मीडियम है, उसका मुझे बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, फिल्म का उस तरफ नहीं जा सका अभी तक। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो में आजकल लिख भी रहा हूँ, मैं उसमें परफॉर्म भी करता हूँ, और इसी तरह थिएटर लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, परफॉर्म भी किया। मेरे ख्याल में आप थिएटर के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। मैं देखिए इस वक्त क्योंकि कैमरे हैं ना, तो कैमरे के सामने वो बात ज्यादा करनी चाहिए जो लोगों को नहीं पता। ये शायद मेरा जाती तजुर्बा भी है और पूरा हक हकूक भी रखता हूँ। जब हम पुरानी बात करते हैं तो टीवी के जब प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई जी, तो आपने उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। नहीं, रोल तो जो किया, हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर का जितना गुना सवाब है ये हमें मिल रहा है। वो क्या है, वो थोड़ा सा गुना सवाब जरा डिफाइन करते हैं, दूसरे भी कोई तो पता चले, एक मैं जानता हूँ तो वो भी तो जान सके। प्राइवेट सेक्टर में ड्रामा लेके ही हम आए, वी आर द पायनियर ऑफ इन दिस फील्ड। पहला ड्रामा सीरियल जो सबसे पहला ड्रामा सीरियल पीटीवी पे जो नशर हुआ नशेब के नाम से, हाँ जी, वो इस्लामाबाद तक से हुआ, और उसको स्टार्ट करने वाले हम थे जी। तो जब हम ये आइडिया लेके पीटीवी हेडक्वार्टर गए तो अरबाबे इख्तिदार ने हमें कहा कि कैसे करोगे ये, क्या शादी ब्याह वाले कैमरे पे करेंगे? तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है जी। उस वक्त यूमेटिक चला करता था। अच्छा, यूमेटिक का दौर था। ठीक है, आ गया तो दौर चल जाता था मतलब पीटीवी पे यूमेटिक वो इतनी बड़ी टेप हुआ करती बिल्कुल थी। तो हमने कहा जी जो पीटीवी पे रिकॉर्ड होता है ना यूमेटिक पे, हम वही करेंगे। बल्कि पीटीवी थोड़ा सा पीछे था, लो बैंड पे था। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने उस वक्त अपना नया सेटअप लगाया था और वो हाई बैंड पे थे। अच्छा। तो हमने कहा जी हम कोशिश करेंगे हाई बैंड पे करें। अच्छा। उन्होंने कहा यार फिर तो हम लो बैंड पे तो मैच नहीं होगा। ठीक है। अच्छा। तो इस तरह हमने प्योरली प्रोफेशनल काम किया, स्टार्ट किया। पहला सीरियल, एवर फर्स्ट सीरियल ऑन पीटीवी इन प्राइवेट सेक्टर, ये आपको भी क्रेडिट जाता है, आप भी इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, तो वो इस्लामाबाद ने स्टार्ट किया। ठीक हो गया। अब चूंकि सारा काम चला गया है कराची, हाँ, तो बरमला कहूंगा कि हम थोड़े पीछे रह गए, लेकिन पीछे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। ठीक है। दौड़ में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, वो दौड़ से आउट तो नहीं होते, आउट नहीं होते, वो दौड़ में ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। सफर जो है चलते चलते और आगे बढ़ा है। थिएटर में किसी को सोचा होगा कि यार मैं उस जैसा डायरेक्टर बनूं? ये बड़ी अजीब सी बात है, पता नहीं बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद शायद ना आए, लेकिन आई होप कि आपको ये मेरी बात पसंद आएगी। हाँ, मुझे हर अच्छी बात पसंद आती है। मेरी शुरू से कोशिश रही है कि बजाय मैं किसी से ऑटोग्राफ लूं, कोई मुझसे क्यों ना ले। यस। और मैं किसी के साथ तस्वीर क्यों उतरवाऊं, कोई मुझसे क्यों ना उतरवाए। बिल्कुल, ये मेरी कोशिश है, ये मेरी ख्वाहिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा ही चल रहा है। नाज़रीन, ताहिर सिद्दीकी साहब इस ख्वाहिश में कामयाब भी हुए, और इन्होंने क्योंकि हमारा साथ भी है, दोस्ताना भी, और ये जो मुशक्क़त होती है कलम की, उसमें भी हम बहुत जगह इकट्ठे होते हैं। ताहिर सिद्दीकी साहब से हम बात कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर इनसे बड़े अहम सवाल है, वो ज़रूर सुनिएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ताहिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, मुलाकात आप देख रहे हैं। अभी जहाँ तक इतनी प्यार भरी बातें हुई, एक बात और आपको बताऊं कि इनकी मादरी ज़ुबान पोठवारी नहीं है और इन्होंने पीटीवी के लिए एक सीरियल लिखी थी। ताहिर साहब ये बताएं ना जी, ये सवाब भी आपने कमा लिया। ये बिल्कुल सवाब कमाया। वो हुआ ऐसे कि मैरियट में एक फंक्शन में थे हम, कुछ सेमिनार हो रहा था, तो वहाँ पीटीवी से कुछ प्रोड्यूसर हजरात आए हुए थे। तो उन्होंने किसी से बात की कि यार हमें किसी अच्छे राइटर की जरूरत है, हम एक सीरियल करना चाह रहे हैं यहाँ से और रीजनल लैंग्वेज पे। तो मेरा रेडियो का प्रोड्यूसर गुलाम अब्बास वहाँ मौजूद था। बिल्कुल, ओ बड़ा खूबसूरत इंसान है जी, बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा। लव यू गुलाम अब्बास साहब। आपको आपका जिक्र आया तो आपकी मोहब्बतों का मैं भी कर्जदार हूँ, खुश रहें। हम उसके कदरदान भी हैं, कर्जदार भी हैं। बिल्कुल। तो गुलाम अब्बास ने कहा कि जी इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में अगर कोई बेस्ट राइटर आपको अवेलेबल हो सकता है तो वो ताहिर सिद्दीकी साहब है। ठीक हो गया। मैंने कहा यार आपने कुछ ज्यादा कर दिया, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मेरी ये पोठवारी जो है मेरी लैंग्वेज नहीं है। वो कहते जी आप कोई एक पायलट बनाए ना, तो टॉपिक उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने लिख दिया। तो कहते जी आप तो लैंग्वेज भी आपने पोठवारी की लिखी है, इसमें लैंग्वेज भी मैंने ना नॉट फॉर मतलब वॉइस, बल्कि मैंने लिखा भी उसको ना पोठवारी में। सही है। कहते यार तो आप कह रहे हैं आप कि ये लैंग्वेज नहीं है, आपकी जुबान नहीं है। तो मैंने कहा बस देख लो, लिख दिया, बड़ा पसंद आया। उसके बाद वो फिर मुझे याद है हमारे एक दोस्त हैं खालिद मजीद साहब। अच्छा, हाँ जी। एक तो मैं हूँ, एक पता नहीं कोई और भी शायद हूँ। चलिए आप गैस करें। तो मैंने खालिद मजीद साहब से जिक्र किया, वो शायद आप ही थे। अच्छा, कि यार ये लिखा है, तो आपने मेरे ख्याल सेकंड किया उसको कि नहीं यार। तो फिर मैं तो नाज़रीन इस तरह है कि दोस्त जब हम बात करते हैं तो जो चीज़ अच्छी हो उसके लिए फाइट करना जरूरी होता है। नहीं ये ठीक है। तो आपको याद होगा फिर माशाल्लाह वो एक हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब पटवारी की ये कोई ड्रामा या कोई प्रोग्राम करते थे तो उसको बड़ा रिडिक्यूल करते थे। हाँ जी, उसको मिजाह के अंदाज में कि शायद जैसे ये खित्ता जो है ये सिर्फ मजाक के लिए है, सिर्फ मजाह के लिए है और बड़ा नीचे लेवल का है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, खित्ता पटवार की बड़ी हिस्ट्री है। बिल्कुल, मैं आपको याद होगा हम नेशनल लाइब्रेरी में गए थे, इसकी हिस्ट्री निकाली बिल्कुल, और उसको बैठ के हमने पढ़ा। फिर जिस तरह इस पे मेहनत हुई बड़ी, तो उसका ज़ाहिर सिला तो मिलना था, सिला मिला। फिर 20 एपिसोड वो किए। यस, नज़ीर वो सीरियल अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जरूर देखे। आपको ये लगेगा कि जैसे आप कराची का कोई ड्रामा देख रहे हैं, आप लाहौर का कोई ड्रामा देख रहे हैं एज एन आर्टिस्ट, राइटर के तौर पे। अच्छा, फिर उन्होंने प्रोड्यूसर ने भी इस पे मेहनत की। वो नौजवान प्रोड्यूसर थे, फयाज बड़ाइच था मेरे ख्याल, फवाद और दूसरे आमिर जैतून, दोनों ने बड़ी मेहनत की और बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया। अच्छा, इसका क्रेडिट मैं अपने बड़े भाई हैं मेरे तैयब साहब, तैयब खान साहब, जी, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मैं उनको भी दूंगा क्रेडिट। सही है। ये सारा लिखना लिखाना जो है, अदब एहतराम, मैंने उनसे बड़ा अडॉप्ट किया। सही है। वो भी कमाल के राइटर, शायर, और मुझे इस फील्ड में लेके भी वही आए। अच्छा, तो मैंने बरमला कहा हुआ है, सामने भी कहता हूँ, बाद में भी कहता हूँ कि मेरा जो भी क्रेडिट है, जो मैं कुछ करता हूँ, वो आपके अकाउंट में चला जाता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तैयब सब बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत अच्छे, अल्लाह पाक उनको सेहत भी दे, जिंदगी भी दे। वो बहुत नफीस आर्टिस्ट लवर आदमी है। तैयब सब लिखना, लिखाना, अदाकारी करना, ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं। हमारे अंदर ये हसास तबका जो है फनकारों का, उसके लिए जो हमारे इदारे हैं, जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स हो गया या आर्ट काउंसिल्स हो गई, क्या वो अपने अपनी जगह पे कोई हक हकूक पूरे कर रही हैं? बड़े ये अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जब भी हम बात करते हैं ना, ये हमारी जगह हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स जी और पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, जो रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल है, पूरे पंजाब की जितनी काउंसिल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्टों के लिए बनी है जी, फन की तरवीज के लिए बनी है, फनकार को जिंदा रखने के लिए बनी है। ठीक है। और इनकी तनख्वाहें फनकार की वजह से आती हैं,
इनका बजट फनकार की वजह से बनता है। ये आप उल्टा कर रहे हैं या आप सही कह रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो समझ भी रहे हैं। अच्छा। अगर वो सुन रहे हैं, अगर उन्होंने अपने कान खुले रखे हुए, हम इंशाल्लाह उन तक पहुंचाएंगे ये। तो ये बात बिल्कुल बरमला मैं ठीक कर रहा हूँ कि इनके जितने भी बजट्स हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ फनकार की वजह से बनते हैं। इनकी सैलरीज फनकार, जब फनकार इनके पास जाता है, जब फनकार के पास कोई काम नहीं होता तो इनके पास उसके लिए बजट नहीं होता। मुझे नहीं समझ आई आज तक कि इन्होंने फनकार के लिए क्या किया है, जिंदा फनकार के लिए क्या किया है और मुर्दा फनकार के लिए क्या किया है, जिस बेचारे की डेथ हो जाती है। सिवाय उसका एक ताजियती रेफरेंस, वो भी बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। वो नहीं होना चाहिए। वो मैंने कहा, वो रूही बानो का ये कर रहे थे जी, जमाल शाह साहब डीजी थे, तो मुझे भी इनवाइट किया गया बोलने के लिए। तो मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा आप ये क्यों करते हैं, ताज़ियती रेफरेंस क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है? सिर्फ अपने रजिस्टर में लिखने के लिए कि पीएनसीए ने एक ताज़ियती रेफरेंस किया, हाँ फलां के लिए, जब वो बीमार थी, जब वो खुदा के बंदो, मरने वाले को तो कोई फायदा नहीं है इसमें, तो आपकी एफिशिएंसी काउंट हुई। क्या आपने किया जी? किया क्या? उसकी फैमिली को कोई बेनिफिट दिया? नहीं। जब वो बीमार थी उस वक्त कुछ करना चाहिए था सर, किसी ने मिजाज पुरसी नहीं की उसकी। हाँ ठीक। तो मैं उनसे, मैंने बहुत, मुझे अफसोस हुआ, मैंने क्यों करते हैं आप, इसमें भी आपने अपने को पीएनसीए को आगे रखा कि जी पीएनसीए ने ताज़ियती रेफरेंस किया, खुद आगे बंदे, क्या फायदा इसका? जिसको जरूरत थी, चाहे दवाई की थी, चाहे उसको छत की थी, चाहे अभी भी मैं की थी। और कथा कलामी माफ, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के आर्टिस्ट से ये जरूर कहूंगा, अभी मैंने उनकी कुछ पोस्टें पढ़ी थी कि ये हालात ऐसे हो गए हैं कुदरत की तरफ से, ये कोरोना शरोना जो आया, कोरोना की वजह से, तो हमें तो कोरोना के खिलाफ फाइट करना भाई, करनी है, बिल्कुल कर रहे हैं, हमने कंट्रीब्यूट करना है। सही है। तो आप इस अंदाज से इन अदारों से मदद बिल्कुल ना मांगे। बड़ी तस्हीक होती है आर्टिस्ट की, आर्टिस्ट खुदा की कसम इन लोगों से बड़ा होता है। सही है। ये जो बैठे होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन वाले, इनसे कद काठ में, सोच में, समझ में आर्टिस्ट बड़ा इंसान है उनसे। क्यों? आर्टिस्ट की वजह से वो लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी तस्हीक ना करें। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और छोटी सी बात कर रहा हूँ, आप इसको और वो नज़र से देखिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये कुछ देना चाहते हैं तो आर्टिस्ट की तस्वीर बना के मत दें। और मैं आर्टिस्टों से ये, बल्कि तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ आपकी मदद के नाम पर तस्वीर का जिक्र आ जाए तो यार वहाँ जाने से, अपनी इज्जत नफ्स मजरू करने से बेहतर है कि ना लो। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बल्कि इनसे रिक्वेस्ट ही नहीं करनी चाहिए। इनसे कहें कि भाई हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हाँ खुद कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सही है। तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे पे आपने भी देखा होगा, एक आटे की बोरी दे रहे हैं, साथ तस्वीर बन रही है, इतना सा राशन दे रहे हैं। सर मैंने तो कुछ वजीरों की तस्वीर देखी है, वो लाइव देते हुए साबुन की एक टिकिया देते हुए तस्वीर बन रही है। ओ खुदा के बंदो, किस दुनिया में हो तुम लोग। मतलब अच्छा, मैं एक और कदम और आगे जा रहा हूँ, वो ये कहता हूँ कि पहले जो गरीब है ना, वो जाके दरवाजा खटखटा के भी कह लेता है कि जी कुछ कर दो, लेकिन सफेद पोश का क्या किया जाए सर, जो किसी को कह नहीं सकता। सफेद पोश ही तो मारा जाता है। आप, हमारे यहाँ 3 तबके हैं ना, वो जहाँ हम जा नहीं सकते, एलीट क्लास है, हाँ जी, वो 2 या 4-5% है। बीच में आ जाता है दरमियाना तबका जी, वो कुछ कह नहीं सकता। जो लोअर क्लास है वो तो उनके लिए तो है ही है। उसके लिए मैंने भी करना है, आपने भी करना है, सबने करना है। अपनी बसात के मुताबिक सब कुछ जो हो सकता है आदमी कर रहा है। वो आपको रोक के भी कहता है, बाबू जी अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ जी, ला दियो जी, आप ले देते हैं। लेकिन मैं उस सफेद पोश तबके के लिए चाहता हूँ कि हमारे इदारे वो किस तरह से कदम कोई उठाएं। उनके देखें जी, हमारे अदारों के पास
ہمارے آرٹسٹوں کی ساری لسٹیں موجود ہیں، ڈیٹا موجود ہے، ڈیٹا ہر طرح موجود کا ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ بیچارے جو آرٹسٹ ہے، آپ نے اس کام کے علاوہ وہ اور کوئی کام کر نہیں سکتا. تھیٹر بند، ریڈیو بند، ٹی وی بند، فلم بند، ون مین شو بند، میوزک بند، ہر چیز بند ہے. جی. تو انہوں نے تو آرٹسٹ نے تو کرنا ہے، کوئی شو کر رہا ہے، کوئی ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی ریڈیو کر رہا ہے، تو اپنے گھر کچھ لے کے جانا ہے. اب یہ ساری چیزیں بند ہیں. تو ہمارے اداروں کا کام ہے کہ ان آرٹسٹوں کو خاموشی سے پہنچ جائیں، پہنچے. اچھا، وہ کیونکہ شعور اور لاشعور میں یہ سب چیزیں ہیں، وہ محبت کی باتیں کرتے کرتے یہ بیچ میں دکھ کی باتیں بھی آ جاتی ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے، مطلب کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اگلا پروگرام جو پروجیکٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم چونکہ بیٹھے ہیں، اتفاق سے بیٹھے ہوئے ہیں اور حالات بھی ایسے ہیں، تو ہمیں تو اپنے دوستوں کو، پبلک کو، اپنے گھر والوں کو، ساتھیوں، عزیزوں، اقارب جو نہیں جانتے ان کو اویئرنیس دینی ہے کہ یہ ایک ایسی وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یا مین میکنگ ہے یا مین میڈ ہے، جو بھی ہے، بہرحال وہ ایکٹیو ہے. تو اس سے ذرا تھوڑا سا ہمیں پرہیز ایسے کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ گھروں میں اسٹے کریں، ایک دوسرے سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں، اور جو حکومت جو احتیاطی تدابیر بتاتی ہے اس پہ ہم سب کو عمل ضرور کریں. بالکل عمل کرنا چاہیے. آپ کا میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اپنا پروجیکٹ کیا؟ میرا پروجیکٹ یہ تھا جی، یہ دنیا کے منصفوں، ایک تو میں نے پورے پاکستان میں کرنا تھا، اسٹیج کرنا ہے، اسٹیج انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور کچھ لوگ آپ جیسے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، وہ اس کو ابراڈ بھی لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میری کافی میٹنگز ہو چکی، تقریباً کام فائنل ہو چکا تھا، لیکن یہ ایک کرونا حالات کی وجہ سے ایسا ہم نہیں کر پا رہے. دوسرا یہ ہے کہ جب تک دم ہے اور ہمیں کام بھی یہی آتا ہے، اس کے علاوہ آتا کچھ نہیں، اس کے علاوہ آتا کچھ نہیں، لکھنا بھی ہے اور پرفارم بھی کرنا ہے. بلکہ یہ تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے کہ چلیے مل کے کچھ کام کریں. ڈاکٹر صدیقی صاحب، بہت شکریہ، آپ آئے. یقین کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اور بہت ساری باتیں کریں، لیکن یہ جو ٹائم کی قلت ہوتی ہے، ہر چیز کا پابند ہونا پڑتا ہے. اور یہ اشارہ ہو چکا ہے میرے کیمرہ مین صاحب کی طرف سے، وہ جب اشارہ کر دیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو روکنا پڑتا ہے. ہم ایک اور ملاقات رکھ لیں گے. وقت کی بات کی، ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ وقت جو ہے نا، یہ بادشاہ ہوتا ہے. بالکل، یہ انسان کو اپنے پیچھے لگائے رکھتا ہے، ایسے ہی ہے، پھر اس کے ساتھ کھیلتا ہے. ایسا ہی ہے. تو وقت نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کتنا گزر چکا ہے. ایک ملاقات آپ کے ساتھ اور ہوگی جس وقت یہ دنیا کے منصفوں ٹی وی کی طرف جا رہا ہوگا یا ابراڈ جا رہا ہوگا، اس سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر بیٹھیں گے. ناظرین، طاہر صدیقی صاحب کی آپ نے باتیں سنی، پیاری باتیں، خوبصورت باتیں، خوبصورت انسان کے ساتھ آج بڑا اچھا ٹائم گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی جلدی وقت ختم ہو گیا. پھر ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور خوبصورت شخصیت کے ساتھ. اس وقت تک اجازت، اللہ حافظ.